Hello and a very good evening, everyone. Good evening, Shanaz, Ananya. How are you? Hi, Chashi. Good evening. Good evening, Palak. कैसे हैं आप? Hi, Ashita. Avni. Good evening. Trisha. Hi, Anurag. Harjap. I'm good, Shanaz. Hi, Aditi, Dhruv, Ishika. No, Sujal, you did not miss anything. We just started the session. Good evening, Parth. Make yourself again. Make some changes. What does it mean, Bhaskar? Good evening, Hia, Pavik. Yes, Avni. I'm good, Hia. How are you? Good evening, Janki, Rudra, Disney. Sir, IIM Jammu कैसा है? Bhavik, IIM Jammu is a good college. Not as good as Indore or Rohtak, but Jammu is a okay college. Is an okay college. Good evening, Anshuman. I'm good, Rudra. How are you? Hi, Om, Manthan. One article is enough, or more is mandatory. I did not get it, Palak. Depends on the statement, obviously. अच्छा भास्कर सी इज वेलकम के बगल में ओके ठीक है भास्कर चेंज कर लेंगे गुड इवनिंग पारख शोभित रक्षिता सेज आई एम इन ऑडिबल एम आई ऑडिबल एवरीवन हाय शौर्य दक्ष आई एम गुड शौर्य हाउ आर यू गुड इवनिंग दिव्यांशु हितांश रोनिक Maitreyi, I think questions have not been discussed as of now. 1 second, Rakshita cannot hear me. I'll text her. Hi, Anviksha. Divyanshu, questions? Yes, Janvi. Hi, Yashasvi. Good evening, Yash. Anshuman says, I solved a few RCs every morning through practice mode. Is that enough reading for a day or some space for improvement is there? Anshuman, I would recommend that you start reading something new now because you are only solving questions and you're not dedicating your time to reading different topics. That may create some problem. I'm good, Anviksha. How are you? My Diwali was awesome, Shobit. How was yours? Yes, Sujal. So shall we start now? Good evening, Parnika. I think all of you have joined. Do I have your permission? All aboard. Sir, if I complete Word Power Made Easy book, Yuvraj, that is only going to help in case of vocabulary, not for other topics. Yes, Sujal, I can understand. What is the meaning of prized possession? Janvi, something that is valuable to you and आप उसको possess करते हो, that is prized possession. Okay, Rakshita. I'll explain, Suman. Good evening, Tanish. Chali. So, nouns and articles, these are two related topics. Why they are related topics? Because articles are used before nouns. Right? तो उनसे जुड़े हुए questions हमेशा हमेशा common आते हैं. The question will have either article based error or noun based error or both. Right? So you have two categories of questions here generally. पहले कैटेगरी में क्या होता है, यू हैव स्पॉटिंग द एरर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच यू आर गिवन वन स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स. ए बी सी डी टाइप के पार्ट्स होते हैं.
right? So one of these parts will have an error. That error may be based on either nouns and articles or both. दोनों में हो सकता है. और एक क्वेश्चन टाइप क्या आता है भाई, यू आर गिवन वन स्टेटमेंट जिसमें वन पार्ट इज अंडरलाइंड, लेट्स से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अंडरलाइंड. आपसे पूछा जाएगा हाउ डू यू रीफ्रेज दिस पर्टिकुलर पार्ट करेक्ट वे में. तो ये पर्टिकुलर पार्ट में देयर मे बी अ ग्रामर और नाउन और आर्टिकल बेस्ड एरर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सारे एग्जाम्स में देखते हैं. ठीक है. सो युवराज सेज सो विच बुक इज फॉर अदर बुक, which book is for other topics? Yuvraj, as of now, I would say that all the material that is provided by supergrads, that is sufficient as of now. Not exactly, Suman. No idea, Aditya. Ajal, we have not discussed anything as of now. I was just talking casually with you guys. ओके, शहनाज सेज ऐसे क्वेश्चंस में ही मेरे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं. ओके शहनाज, नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस. अथर्व सेज सर एक बुक में सब मिक्स दे के रखा है, सॉल्व करते वक्त आई बिकम कंफ्यूज्ड. अथर्व, यू चूज टॉपिक वाइज चैप्टर्स ना. आप एक टॉपिक चूज करो आज के लिए. मुझे आज वोकैबलरी में कोई एक दो टॉपिक्स को एक दो चैप्टर्स को खत्म करना है, तो यू सॉल्व वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस ओनली. वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हो. यस आरफ, गुड इवनिंग. यस सुजल. मैत्रेय सेज सर वी शुड स्टार्ट इंग्लिश बाय रीडिंग आरएसएम फर्स्ट और वर्ड पावर मेड इजी. आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वर्ड पावर मेड इजी करो, उसके बाद में आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करो. मैत्रेय. युवराज, क्वेश्चन सॉल्विंग. Yes, Atharv. Yes, Suraj. Now, Rishabh says my voice is not clear. Harshraj, we'll do this at the end of the session now. अब थोड़ा सेशन को रिवाइज कर ले. अब पॉइंट यहां पर ये है कि विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन्स एंड आर्टिकल्स टुडे. अगर किसी कॉन्सेप्ट की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को वहां पर साथ में बताने वाला हूं. तो अगर आपने कभी उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो जाएगी. डज दिस साउंड ओके? ओनली एडिटोरियल्स सुमन, along with some articles from other sources. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इज द शीट विजिबल एवरीवन? Okay, let me read the directions first. What should be the grammatically correct sentence? तो आपके सामने एक first sentence है यहाँ पर. This is in a way sentence improvement type of question. You have to improve the sentence. That means अगर किसी part में आपको error लग रहा है, you have to correct that part and rewrite it. ओके तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको सेंटेंस में कोई पार्ट में एरर लग रहा है, जस्ट उस पार्ट को रिफ्रेश करके टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है. ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. गुड इवनिंग महालक्ष्मी, आई एम हैप्पी टू. Come on, come on. Good, Sabira. यशविन एंड anyone else, अगर आपको कोई अनरिलेटेड डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द सेशन और एट द एंड ऑफ द सेशन विल टेक सम डाउट्स. ठीक है.
चलिए, okay, so I have read all the answers. Now let's read the statement. This is a very well known fact that darts are played by not just men but also women. A point यहाँ पर ये a lot of you have answered कि ये वाले part में कुछ error है, but this part is completely correct. There is no error here. Not just men but also women is correct. The error here is in this part. कहाँ गया? So this is a very well known fact that darts are played not कहाँ गया? By not just men. This part has an error. This is a very well known fact के बदले it should be it is a very well known fact. Right? तो यहाँ पर this का use incorrect है. This is a demonstrative adjective या demonstrative pronoun. तो उसको हम यहाँ पर sentence को start करने के लिए use नहीं कर सकते. It is a very well known fact that darts are played by not just men but also women. That should be the correct sentence here. ऐड और रिमूव आप कर सकते हो बट वो ग्रामेटिकली मीनिंग सेम होना चाहिए. और डार्ट्स एक गेम होता है दक्ष, वो जो एरो पॉइंट करने वाला गेम होता है ना. ठीक है, क्लियर है? सो इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट डार्ट्स आर प्लेड बाय नॉट जस्ट मेन बट ऑल्सो वुमेन. नहीं आज था, अभी जो मैंने चेंज किया उससे मीनिंग चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, बाय नॉट जस्ट मेन, करेक्ट. हाँ करेक्ट है. तो इसमें क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे. देखो इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं. पहला तो आई विल गिव यू लाइक दिस. ऐसे मैंने कुछ पार्ट्स डिसाइड कर लिए. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज 4 पार्ट्स हैज अ ग्रामेटिकल एरर. तो यहां पर ए पार्ट में एरर हो जाएगा. अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर दूंगा मैं, आई विल अंडरलाइन दिस पार्ट एंड मैं इसी को रीराइट करके 4 ऑप्शन में लिख दूंगा. एक में दिस लिख दूंगा, एक में दैट लिख दूंगा, एक में इट लिख दूंगा, ऐसा कुछ करके लिख दूंगा. तो योर टास्क विल बी फाइंड आउट कि कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है. ठीक है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट्स है अभी? एनीवन हु हैज डाउट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट्स? कुशाग्र शुक्ला, ओके. कुशाग्र, व्हाट इज योर डाउट? सर व्हाई नॉट दैट, कहां पर शोभित? अथर्व, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट, एक बार चेक करना. ईशान, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन नाउन्स एंड आर्टिकल्स. सूरज, चलता है इतना तो. वेरी वेल नोन फैक्ट, करेक्ट है. समृद्धि, वी कैन स्टार्ट बट आपको फिर वो उसको उस सेंटेंस उस स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा. लाइक दिस कैन नॉट हैपन, ये करेक्ट है. दिस में आप किसी चीज को रेफर कर रहे हो. जब आपको इंट्रोडक्टरी फ्रेज में लिखना होता है, इंट्रोडक्टरी वे में लिखना होता है, तो आप इट से स्टार्ट करते हो, दिस से स्टार्ट नहीं करते हो. ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकेंड वन नाउ, ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन एवरीवन. एक काम करता हूं मैं, शॉर्ट आंसर वाला अगर हो सकता है तो वो लॉन्च करता हूं. हाँ भाई, शॉर्ट आंसर इसमें टाइप करो जरा. Come on, come on.
कुश, वन सेकेंड, किसका डाउट था? अथर्व। तो अथर, अगर आप इसको प्रीवियस स्टेटमेंट के कंटिन्यूएशन में यूज कर रहे हो देन आप दिस यूज कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट कंटिन्यूएशन, क्योंकि इसका रेफरेंस आगे आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, दैट के बाद में इसका रेफरेंस आ रहा है। क्लियर? दिस आप कंटिन्यूएशन में यूज करते हो, इंट्रोडक्शन के लिए इट यूज करते हैं। ठीक है, चलो एनीवेज, नॉट जस्ट बाय मेन बट ऑल्सो बाय विमेन, नहीं वो इनकरेक्ट है, उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, दैट इज बेस्ड ऑन कंजंक्शन। ओके वाघ, अथर्व, आई विल ट्राई दैट। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं एवरीवन। चलो, he gave me an advice that changed my life। अच्छा, has anyone ever heard these words before? और किसी ने लेटर्स देखे पहले? एक वर्ड होता है एडवाइस और दूसरा होता है ये ADVISE। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस हियर? एनीवन? बस एक ही डिफरेंस है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये जो VICE होता है दिस इज अ नाउन, एंड VISE जो होता है दिस इज अ वर्ब। सो आई एडवाइज्ड हिम, यहां पर ये वाला एडवाइस यूज हुआ है। आई गेव हिम एन एडवाइस और अ पीस ऑफ एडवाइस, तो वहां पर ये वाला यूज हो रहा है। माधव गर्ग हैज रेज्ड हिज हैंड। यस माधव। गुड इवनिंग सर, वो एक्चुअली गलती से हुई। अच्छा ओके, तो अब यहां पर ये जो आ रहा है गेव, यहां पर वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, तो वी डोंट नीड अ वर्ब, मतलब ये वाला एडवाइस तो नहीं आ सकता। तो दिस एडवाइस इज करेक्ट, बट द पॉइंट इज ये जो नाउन होता है दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब द पॉइंट इज ए और एन का यूज कब किया जाता है भाई? काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, हाँ या ना? तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके सामने हम ए और एन कैसे लगा सकते हैं? भाविक, सारे क्वेश्चंस में मैं उनके कॉन्सेप्ट साथ में डिस्कस कर रहा हूं, डोंट वरी। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको उसको काउंटेबल बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे आप? अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये सिंगुलर के लिए है, दिस इज सिंगुलर। अगर आपको प्लॉरल बनाना है तो आप क्या बोलोगे? पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, ये क्या बन जाएगा? प्लॉरल बन जाएगा। तो एडवाइसेस नहीं हो सकता है, पीस ऑफ एडवाइस, सम एडवाइस भी नहीं हो सकता। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस। तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस आना चाहिए था। क्लियर हुआ एवरीवन? एन एडवाइस इज रॉन्ग, यस कौस्तुभ। सुदर्शन, यहां पर जो पीस है उसमें क्या साउंड आ रहा है? वॉवल, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड में आप ए यूज करते हो, इसीलिए। He gave me advice that changed my life. No, you'll have to decide, define आस्था, कितने एडवाइस दिए थे, तो अ पीस ऑफ एडवाइस बोलना पड़ेगा आपको। ओके जागृत, तो दीज आर टू वर्ड्स, एडवाइस VICE वाला होता है और VISE वाला होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूं ही एडवाइज्ड मी, तो यहां पर ये SED वाला आता है, टू डू समथिंग लाइक दैट, बट ही गेव मी अ पीस ऑफ, सॉरी पीस ऑफ एडवाइस, ये जो होता है नाउन होता है, तो इसमें VICE होता है जागृत। क्लियर? मंथन, द तब आता है जब आप एक स्पेसिफिक चीज को रेफर कर रहे होते हो, बिना स्पेसिफिक के द यूज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर नाउ शोभित?
ठीक है. नाउ सम ऑफ यू मे थिंक दैट आई एम गोइंग अ बिट स्लो, बट उसका रीजन समझो दैट देर आर सो मेनी डाउट्स इन द चैट बॉक्स. तो अगर मैं उन डाउट्स को अनएड्रेस छोड़ दूंगा तो दैट इज नॉट व्हाट आई एम लिविंग फॉर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो थोड़ा स्लो हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइस. ठीक है. तो सर एक स्पेसिफिक एडवाइस ही होगी ना जो लाइफ चेंज कर दे. तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी एडवाइस. ठीक है. किस किस एडवाइस की बात कर रहे हैं आप. भाविक, ए का यूज तब किया जाता है जब आपके सामने कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. आस्था एज अ क्वेश्चन. यस आस्था. गुड इवनिंग सर. यस, सर गुड इवनिंग आस्था. ये क्वेश्चन हो जाता है, ही गेव मी अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस. सॉरी. ही गेव अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस, तो फिर वो आर्टिकल रहेगा उसमें या फिर हाँ रहेगा. ही गेव मी अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस. तब भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितनी एडवाइस दी थी. फिर वो लाइफ अब चेंजिंग हाँ, अब अगर एक तुम बोलो कि अब मैंने यहां पर पीस नहीं बोला है, उसका रीजन है. अब आप बोल रहे हो लाइफ चेंजिंग एडवाइस. अब मैंने उसको कैसे काउंटेबल बनाया है. लाइफ चेंजिंग यूज करके उसको मैंने काउंटेबल बना दिया है. तो अब आई डोंट नीड टू यूज पीस. अब ये जो ए यूज हो रहा है ये लाइफ चेंजिंग के लिए यूज हो रहा है. सर, थैंक यू. ठीक है. Madhav has raised his hand. Madhav, you can speak now. Sir, actually, I didn't understand the difference, like where to use advice and where to use the other one. तो ये जो VISE वाला होता है ये वर्ब होता है. आपके पास में अगर वर्ब नहीं है तो आपको ये सब्जेक्ट के बाद में VISE वाला डालना होता है. तो ये फर्स्ट वाले में ही इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब. वन सेकेंड. Okay. राइट. और सेकंड वाले में क्या हुआ, अब ये गेव ऑलरेडी आ चुका है तो गेव बिकम्स योर वर्ब. तो वर्ब सेकंड टाइम हम यूज नहीं करेंगे. तो देन वी नीड अ नाउन हियर. तो ये नाउन हो जाएगा. ठीक है. अथर्व खन्ना कैन स्पीक नाउ. Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग अथर्व. Sir, could we say that he gave me advice नहीं, without having any? नहीं. तो यू हैव टू डिफाइन इट. आप या तो, बिकॉज एडवाइस इज अ नाउन एंड मैंने बताया था नाउन्स के पहले हमको आर्टिकल्स को यूज करना होता है. All right, sir. And sir, if we were to say he gave me a piece of advice which changed my life. हाँ. So, तो विच और दैट में देयर इज अ डिफरेंस हियर. विच के पहले यू नीड टू यूज अ कॉमा एंड विच के बाद में जो इन्फॉर्मेशन आता है दैट इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट to discuss, then you use which and comma. Other than that, if it is important piece of information, you have to use you have to use that. so sir, is it applicable for all sentences or is it just a unique case in this one? It depends on the context. In this context, he gave me an advice that changed my life. He gave me a piece of advice that changed my life. का मतलब यह है, I have to define which advice am I talking about. अगर मुझे डिफाइन करना है तो दैट मीन्स इट इज इसेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. बिकॉज इट इज इसेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव टू यूज दैट हियर. All right, sir. Got it. ओके. दिव्या. Um, Good evening, sir. यस. Can it be the advice he gave me changed my life? Yes, but you are changing the structure of the sentence now. Okay. I mean, that makes sense. One sentence can be written in multiple ways. But what we need to do is we need to find the best way without changing the meaning. So in the second statement, what you're doing is you are focusing on the advice that he gave me. But I am focusing on the person now. He, right? Okay. Okay. चलिए आगे बढ़े. Yes, Sudarshan, peace has a consonant sound. That is why हमको उसके आगे A लगाना पड़ेगा. चलो, third question now. Third, everyone.
इसके लिए पोल एक्चुअली में लॉन्च नहीं कर सकता. एक काम करो, 3, 4 और 5 ट्राई कर लो. यू हैव 1 minute, देन विल डिस्कस 3, 4, 5 टुगेदर. ठीक है. यस हितांश. Come on, come on. चलिए, now let's discuss the third question. I shall always prefer self-employment to job in any office. अब the problem here is हम बात कर रहे हैं job के बारे में, and job is something that can be counted. 1 job, 2 job, 3 jobs, something like that. So because it is countable, I have to define it, decide it. उसके आगे मुझे एक article लगाना पड़ेगा. So I shall always prefer self-employment to a job in any office. क्लियर हुआ? तो आई शैल ऑलवेज प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस. क्लियर है एवरीवन? गुड रिया. फोर्थ वन, इट्स गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस. बताओ कैसे रीराइट करोगे? इट्स अ गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस. यहां पर भी द आता है या नहीं? बोलो, आता है ना? प्लीज रिपीट थर्ड. ओके लावण्या. तो थर्ड में क्या हो रहा है? जॉब इज काउंटेबल. बिकॉज जॉब इज काउंटेबल, उसमें हमको उसके आगे ए या एन को लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अ जॉब हो जाएगा. टू होना जरूरी है. प्रेफर एक ऐसा वर्ड होता है विच इज फॉलोड बाय टू. Prefer, inferior, superior, junior, these words are followed by two. Madhav, Atharv, Astha, Samriddhi, if you do not have any questions, please lower your hands. Astha can speak. So in third one, can't it be I shall always prefer self-employed job in any office? Self-employed job? तो मीनिंग ही चेंज है. How do you define a self-employed job? These are oxymoron. Self-employment is one thing, job is another thing, no? Right? Shahnaz, you can speak now. Good evening, sir. Can you Good hear evening, me? Shahnaz. Yes, yes. Sir, in the fourth question, it's a golden rule must also be added, right, sir? Yes, yes, yes. Uh, I did not write it. It has to be added, yeah. okay, okay. Yes, sir. Got it. It's a golden rule of economics. The greater the demand, the higher the price. ठीक है? Okay. Yes, sir. Clear. Okay. ध्रुव गर्ग. Oh, sorry, ध्रुव, मैंने तुमको म्यूट कर दिया फिर से. If you have a question, you can raise your hand, ध्रुव.
Anyways, chalo, next one. Anshuman Panda. Okay. Hello, am I audible? Yes, Anshuman. Good evening, sir. Good evening. So, my concern is in the fourth question that Hmm. you said we should use before golden rule. That it Hmm. should be it's a golden rule. Why can't it be the? Because the golden rule is defined that the greater the demand, the higher the price. So if it's definite, why can't we use the as an article? Okay, so there are two possibilities here. I can say it's the golden rule of economics. The greater the demand, the higher the price. Or I can say it's a golden rule of economics. The greater the demand, the higher the price. In this situation, I can use in fact both. Because when you specify something, you can use the, so I am specifying the golden rule of economics. I can use the, Mhm. but if I am talking about the, let's say there are multiple rules in economics. One of those rules is the golden rule of economics, that is the greater the demand, the higher the price. When I'm talking about the one number, then I can use a. So in this case I think the better one would be the, but a भी use हो सकता है. Okay. So Okay. how are we supposed to differentiate that whether we have to use a or the हाँ, in such a so situation? in as a thumb rule, if you're referring to something in general, if you're referring to something that is used for the first time, then you use a or an. If you are Okay. referring to something that has been talked about for the second time, or that is something specific, then you use the. Okay, sir. Got it. Okay. Thank you. Okay. Fifth question. She has posted an unique idea on her Instagram. Now it's an easy question. Unique, even though it starts with U, लेकिन sound क्या आ रहा है? YU वाला. और Y is a consonant, तो यहाँ पर A आएगा. And नहीं आता है, it's a unique idea. तो she has posted a unique idea or on her Instagram. Clear? चलिए. Question number 6 to 10 everyone. 6 to 10. Samriddhi, prefer is always followed by to as a rule. Why not she had? We are not supposed to change the tense here, Kulareti. Tense is right here. Itansh says, please explain the fifth one again. So Itansh, unique जो word होता है, unique में even though वो U से start हो रहा है, लेकिन उसका sound Y sound है. Y और Y consonant होता है, तो इसीलिए हमको उसके आगे A यूज करना होता है. नो मंथन. Bhavik, that's the rule. Prefer is followed by to. ईशान, कैसे पता चला? Here I will, I shall both mean the same. कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें. Come on, everyone. Bhumika, prefer is followed by to as a rule. Anyone who's not done up to 10th?
Don't worry, Kula Reddy, I'll explain everything. No problem, Astha. Okay, I think some of the students struggle और इनफैक्ट आर स्ट्रगलिंग विद द रूल्स. तो एक बार मैं क्या करता हूं, मैं एक बार आपको रूल्स बता देता हूं. डू यू वांट टू रिकैप द रूल्स बाय द वे? चलिए ठीक है. Probably we'll not be able to solve many questions then, बट एक बार रूल्स को रिकैप कर लेते हैं. तो नाउन्स का मैंने मतलब यहाँ पर लिखा है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, एट्रीब्यूट, कंडीशन, एक्टिविटी, सारे मतलब बेसिक मीनिंग्स है, नॉट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ. अब ये टाइप्स ऑफ नाउन्स है जिसमें कॉन्क्रीट नाउन होता था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते थे. एब्स्ट्रैक्ट में जिस ऐसे नाउन्स आते थे जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, राइट. ओके, नेक्स्ट वन, कॉमन नाउन्स आते थे कुछ. कॉमन में कैटेगरीज आती है चीजों की या लोगों की. प्रॉपर में हम नाम लेते लोगों के या प्लेसेस के, राइट. कलेक्टिव में कलेक्शंस ऑफ थिंग्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, टीम, फैमिली, क्रू. अब देर आर सम ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक काइंड एज वेल, जैसे कॉलोनी ऑफ एंट्स, हाइव ऑफ बीज, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, ऐसे कुछ प्रॉपर ग्रुप्स भी होते हैं. देन काउंटेबल नाउन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एक्सपीरियंसेस कैन बी काउंटेड, एप्पल्स कैन बी काउंटेड, बुक्स कैन बी काउंटेड, पेन कैन बी काउंटेड, तो उनको काउंटेबल बोला जाता है. अनकाउंटेबल में जिन चीजों को काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड, एयर, वाटर, ऑयल, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, इनको हम काउंट नहीं कर सकते. सृष्टि, कॉन्क्रीट का मतलब है ऐसे वर्ड्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. बॉटल, पेन, चेयर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट फिजिकली, उनको कॉन्क्रीट नाउन बोला जाता है. Gold is uncountable, Ishan. You cannot count gold. How do you count gold? बताओ कैसे काउंट करते हो गोल्ड को? तुमने बार्स को काउंट किया है, गोल्ड को नहीं. गोल्ड बार. अथर्व, I'll soon try. Feelings can be countable. Yes, Mahalakshmi. You can weigh gold. 1 gram, 2 gram, something like that. ठीक है. Next is compound. Thoughts can also be countable. Silver is uncountable, Avni. I have a feeling. One feeling, right? Countable. I heard her feelings प्लॉरल मतलब काउंटेबल. जिसका सिंगुलर और प्लॉरल एग्जिस्ट कर गया वो काउंटेबल होता है. नो वेट इज नॉट काउंटेबल. तेजस, डायमंड इज अनकाउंटेबल. डायमंड इज मटीरियल ना. महालक्ष्मी, फीलिंग्स आर काउंटेबल. ठीक है. फिर आते हैं कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड में वी हैव वर्ड्स जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिलकर के बनाए जाते हैं. जैसे बेड लैम्प है, स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस है, सन ग्लासेस. दीज आर ऑल. सॉरी, कुछ ज्यादा नॉइस हुआ था क्या? Mahalakshmi, I have a feeling that I might hurt her. A feeling मतलब one feeling. I hurt her feelings, तो plural. ठीक है, कोई बात नहीं अनुभव. चलिए नेक्स्ट इज जो रूल्स की हम बात कर रहे थे. तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते दे आर ऑलवेज सिंगुलर. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. एयर, गोल्ड, इंफॉर्मेशन, दे आर ऑल सिंगुलर. इंफॉर्मेशन को अगर मुझे प्लॉरल बनाना है तो मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बनाना पड़ता है, जैसे एडवाइस में होता है, राइट. इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है. हेयर इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. तो हेयर को हम सिंगुलर और प्लॉरल दोनों में यूज कर सकते, दोनों वे में यूज कर सकते हैं. पेन इज अनकाउंटेबल. ठीक है. फिर जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं दे आर बोथ सिंगुलर एंड प्लॉरल. दैट डिपेंड्स
ऑन द वर्ड. तो एन एप्पल इज सिंगुलर, 50 ऑरेंजेस प्लॉरल हो जाएगा, 6 कीबोर्ड्स प्लॉरल हो जाएगा. देन वी हैव सम पजेसिव नाउन्स. तो अपोस्ट्रोफी वाला पॉइंट, तो अपोस्ट्रोफी एस तब ऐड किया जाता है जब आप पर्सन के पोजीशन की बात कर रहे हो. राहुल्स बैट, सचिन्स बैग, शीनाज मेकअप किट, समथिंग लाइक दैट. कार जो होती है इट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसका पोजीशन हम नहीं दिखा सकते अपोस्ट्रोफी एस के थ्रू. तो कार्स सीट इनकरेक्ट हो जाएगा. सीट्स ऑफ द कार शुड बी द करेक्ट वे टू यूज इट. ठीक है. इज माई वॉइस ब्रेकिंग एवरीवन? कैन बी यूज फॉर एनिमल्स एज वेल. हर्षाप, some, I mean most of you are saying that my voice is good. I should become an RJ then. आगे बढ़ते हैं. अब ऐसा मत बोलना सर इतनी भी गुड नहीं है. तो नेक्स्ट इज फॉर कलेक्टिव नाउन्स. अब कलेक्टिव में जो रूल है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. अगर कलेक्टिव नाउन्स के जो मेंबर्स हैं वो अगर एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो इट इज टेकन एज अ सिंगुलर noun. But if the members of the collective noun they are acting independently, मल्टीपल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो प्लॉरल बन जाता है. जैसे द टीम इज प्लेइंग वेल का मतलब क्या है? टीम एक यूनिट है, पूरी टीम अच्छा खेल रही है, तो मैंने टीम इज बोल दिया. बट अगर मैं बोलूँ द टीम आर ऑल वेयरिंग मैचिंग जर्सीज का मतलब क्या हुआ कि टीम का हर एक प्लेयर अपनी अपनी मैचिंग जर्सीज पहन करके बैठा है, तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए यहां पर वो प्लॉरल हो जाएगा. ठीक है. नो दक्ष, वी डोंट यूज apostrophe there. Boys played well. Yes, Anshuman. Good अनुभव. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड इनटैंजिबल नाउन्स. ये अनकाउंटेबल होते हैं हमेशा, और बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल दे आर ऑलवेज सिंगुलर. एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसे वर्ड्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं. राइट. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं. इन पे क्वेश्चंस आते हैं बाय द वे. वाटर इज ऑलवेज सिंगुलर. एयर, गोल्ड, शुगर, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर. लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ट्रुथ, जस्टिस, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. जो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी होते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके नाम में एस आ रहा है. जैसे अभिषेक अगर मैंने बोला तो यू विल नॉट से दैट अभिषेक आर टीचिंग अस. विल यू से दैट? नहीं, मेरा नाम अभिषेक हो जाएगा फिर तो. बट मेरा नाम अभिषेक होने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं प्लॉरल हो गया. नाम तो मैं तो एक ही हूं ना. तो दैट मीन्स इन सब्जेक्ट्स के नाम में एस आ रहा है एंड में, डज नॉट मीन दैट इज प्लॉरल. 100 grams of gold is countable. You are talking about weight, Suman. You're not talking about gold as of now. Weight को आप बोल सकते हो कि वो मतलब मल्टीपल प्लॉरल हो सकता है. 1 ग्राम, 100 grams, weight. आर्या, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स जो है वो एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं और मल्टीपल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. For example, the jury has unanimously decided to क्या बोलेंगे उसे, free the convict of the blame. तो has आ जाएगा यहां पर क्योंकि सबने मिलकर डिसाइड किया. Air is both countable. No, मैंने नहीं बोला माधव, मैंने बोला air is uncountable. How do you say that, Itansh? कैसे सेंटेंस कैसे बनाओगे? Instead of saying Abhisheks, you will say the two persons, right? ठीक है. तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये सारे सिंगुलर होते हैं. जो भी जेरेंड्स होते हैं जिसमें आईएनजी आता है, एक्टिविटी को जो इंडिकेट करते हैं, रनिंग, स्विमिंग, राइटिंग, सिंगिंग, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. यस शांभवी. ठीक है. लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज बेसिकली मैंडरिन लैंग्वेज है, तो ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं. ठीक है. लैंग्वेजेस आर ऑलवेज सिंगुलर. ठीक है. अगर आप मीट्स की बात करें, फूड की बात करें, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फूड, क्विजीन, दे आर ऑलवेज सिंगुलर.
फिर आता है डिजीजेस, मीजल्स, डायबिटीज, मलेरिया, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. अब इनके नाम में एस या ई एस आ रहा है, बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर. ठीक है. अगर आप इवेंट्स और फिनोमेना की बात करें, हरिकेन, थंडर, अर्थक्वेक, एक्लिप्स, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ब्यूटी, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. जब भी आप प्रॉपर नाउन को रेफर करते हैं जो एक सिंगुलर एंटिटी को रेफर कर रही है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. अर्थ इज सिंगुलर. एप्पल आईएनसी इज द नेम ऑफ द कंपनी, इट्स सिंगुलर. नाइल रिवर, एक ही रिवर है, सिंगुलर. तो इन सबको सिंगुलर वे में यूज किया जाता है. अब there are certain nouns which are always plural. For example, scissors, pants, glasses, tongs, socks, earrings, spectacles. They are always plural. Scissor कुछ नहीं होता है, pant कुछ नहीं होता है, glass कुछ नहीं होता है. ग्लास कौन सा वाला? जो ग्लास आप पहनते वो ग्लासेस होता है. जो ग्लास आप जो विंडोज में फिट करते ये सब करते वो ग्लास होता है. दैट्स मटीरियल. बट ग्लासेस यानी स्पेक्टिकल्स. टोंग्स, सॉक्स प्लॉरल होता है, सॉक कुछ नहीं होता है. इयरिंग्स प्लॉरल होता है, स्पेक्टिकल्स प्लॉरल होता है. क्लियर है? पेयर ऑफ सॉक्स विल बी सिंगुलर. यस. 2 persons, अंशुमन. वाटर पीने वाला ग्लास, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. शहनाज, उसको आप प्लॉरल बना सकते हो, ग्लासेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्टिकल्स एंड ग्लासेस? कोई, देयर इज नो डिफरेंस. कुलाई रेड्डी, ग्लासेस इज अ क्या बोलेंगे उसे, कोलोक्वियल टर्म फॉर स्पेक्टिकल्स. ठीक है. नाउ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट प्लॉरल होते हैं. जैसे कैटल, इट लुक्स सिंगुलर बट इट इज प्लॉरल. इट इज फॉलोड बाय अ प्लॉरल वर्ब. पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, दे आर ऑलवेज प्लॉरल. तो इनके आगे आपको प्लॉरल वर्ब यूज करना होता है हमेशा. पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ. ठीक है. स्नेहा, यू वुड से वन ऑफ माई सॉक्स. वन ऑफ माई सॉक्स. कैटल इज अ कलेक्टिव नाउन. यस सुमन. नेक्स्ट, nouns that look plural but are singular. तो mathematics, news, politics, mumps, measles, linguistics, they look plural but they are always singular. ठीक है? Clear हुआ everyone? Colloquial का मतलब होता है something that is used in day-to-day language. No शौर्य, ऐसा कुछ नहीं है. कैजुअल, हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वही वाला. मीजल्स इज अ डिजीज. यस. मम्प्स इज अ डिजीज, आर्यन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड नाउन्स रूल्स के बारे में. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बाय द वे. इनडेफिनिट आर्टिकल होता है एक, और एक डेफिनिट आर्टिकल होता है. लॉन्ग्स, कहाँ लिखा है लॉन्ग्स? दक्ष, where is longs? No, police is not a collective noun, Tejas. It's a common noun. Welcome, Bhavik. Tongs. Tongs होते चिमटे, दक्ष. जस्ट अ बिट सृष्टि, बस आर्टिकल के कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर विल गो बैक टू द क्वेश्चंस. लॉग इज काउंटेबल और नॉट? विच लॉग आर यू टॉकिंग अबाउट, दिव्यांशु? अच्छा, लॉग वुड वाला. तो लॉग जो आता है, लॉग्स ऑफ वुड, लॉग इज काउंटेबल देन. मम्प्स इज अ डिजीज, ओम. नेक्स्ट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, सेकेंड वन इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल. तो वर्ड्स लाइक ए और एन और द का पर्पज है चीजों को स्पेसिफाई करना और लिमिट करना, राइट? तो दीज ए और एन वाले जो वर्ड्स होते हैं, दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तीनों. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही ए और एन का यूज किया जाता है टू रिफर टू इनडेफिनिट पर्सन और थिंग, राइट? ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन आता है वॉवल साउंड के पहले. ठीक है. वर्ड इज अनकाउंटेबल. देन डेफिनेट जो होता है उसमें एक ही आर्टिकल आता है, द. द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल,
countable and uncountable nouns to refer to a particular person or thing. तो singular के पहले भी आ जाएगा, plural के लिए भी आ जाएगा, uncountable, countable सबके लिए आ जाएगा the. ठीक है. अब indefinite के यूज देख लेते हैं. तो जब आप बोलो कि to indicate a noun that is used for the first time, जिसको हम first reference बोलते हैं, तब a या n का यूज किया जाता है. So I saw a pen in his hand. जब आप किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, अ बर्ड हैज टू विंग्स का मतलब है एनी बर्ड हैज टू विंग्स, तो यहाँ पर ए आ जाता है. अब जब आप किसी वन नंबर की बात करते हो, व्हेन आई वेंट टू द जू आई सॉ एन एलिफेंट, तो ये वन के लिए हमने एन एलिफेंट यूज कर लिया. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम या मेजरमेंट, प्रोफेशन, रिलीजन, नेशनैलिटी को इंडिकेट करते हैं. तो ही गोज होम ट्वाइस अ वीक टाइम. I bought half a kg measurement. He is a teacher profession. He is a Hindu religion. An Indian nationality. इन सब के पहले a या n यूज होता है. अथर्व says can you repeat indefinite again? तो indefinite में a या n आर्टिकल आते हैं. इनका बेसिकली यूज कब होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले. भाई a और n कब यूज करते हैं? a और n का मतलब ही वन होता है ना, तो वन के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होता है a और n. ठीक है अथर्व? फास्ट हो रहा है क्या? एम आई गोइंग फास्ट नाउ? और इज इट ओके? चलिए, नेक्स्ट वन इज जब भी आप एक्सक्लेमेशन यूज करते हो सरप्राइज के लिए, जॉय के लिए, एडमिरेशन के लिए, तब आपको ए या एन को यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल सनराइज, व्हाट अ सैड डे, तो ये ए सैड अ ब्यूटिफुल ये एक्सक्लेमेशन में यूज होता है. अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल के यूजेज पे. ही इज द बेस्ट. अब ये डिग्री आ गया यहां पर मंथन, उसका भी एग्जाम्पल आएगा आगे, डोंट वरी. तो टू रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करते हो तब आपको द यूज करना होता है. तो मैंने अगर यहां पर बोला द डॉग दैट बिट मी रैन अवे, ये द डॉग कौन सा डॉग है? नॉट अ नॉर्मल डॉग, ये वो वाला डॉग है जिसने मुझे काटा था. तो आई एम रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक डॉग, तब द आ जाएगा. ठीक है. जब भी आप चीजों को सेकेंड टाइम रेफर कर रहे होते हो तब द आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ गर्ल इन द कॉलेज यस्टरडे, यहां पर ए यूज हुआ है. क्यों? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट रेफरेंस में ए या एन आता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द सेम गर्ल फॉर द सेकेंड टाइम, देन मुझे द यूज करना पड़ेगा. तो द गर्ल लुक्ड ब्यूटिफुल. विच गर्ल? द गर्ल दैट आई सॉ इन कॉलेज यस्टरडे. राइट. What an elevation. What an elevation. Clarity. क्या हो गया ईशान? नहीं सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट वन, before a singular noun when it stands as a representative for a class. So when I say the cobra is a venomous snake, what do I mean by that? I mean all cobras are venomous snakes. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. बिफोर सर्टन एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट अ क्लास, तो जब भी आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, व्हेन आई से द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द डम्ब, द डेफ, तो आई एम रेफरिंग टू ऑल द पीपल इन दैट कैटेगरी. द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल. तो यहां पर ये हमेशा प्लॉरल होता है, उनके पहले हमको द यूज करना होता है. ठीक है. Why not a cobra is a venomous snake? तो दोनों की बस मीनिंग में डिफरेंस ये है कि if I say a cobra, I mean to say any cobra. If I say the cobra, I mean to say all cobras. बस मीनिंग में इतना डिफरेंस है. Okay? Next. Before an adjective that qualifies a proper noun. अब यहां पर अगर आप देखो, द ग्रेट अजंता केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो ये अजंता केव्स में ए कैपिटल है, सी कैपिटल है, इट्स अ प्रॉपर नाउन. बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन, उससे पहले एक जो वर्ड यूज हुआ है ग्रेट, ये एक एडजेक्टिव है. बिफोर दिस एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज अ प्रॉपर नाउन, आई हैव टू यूज द. तो द ग्रेट अजंता केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र. एम आई ऑडिबल एवरीवन? आंचल, अभी आवाज आ रही है?
चलिए, बिफोर एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो किसी का कुछ क्वेश्चन आया था मंथन का, आई थिंक ही इज द बेस्ट टीचर। तो उसका रीजन क्या है, ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द यूज करना होता है, दैट इज द रूल, वहां पर ए या एन नहीं आता है, ठीक है। बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये वाला जो पार्ट है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आते हैं यू हैव टू यूज द बिफोर देम। तो आई प्ले द पियानो वेरी वेल, पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले द आना चाहिए। क्लियर? द ग्रेट ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ द यूके कॉस्टम। नेक्स्ट वन, अब मिसलेनियस भी यूजेज होते हैं कुछ द के, फॉर एग्जाम्पल सन, अर्थ, स्काई, सी, ओशन, इक्वेटर, इन सब के पहले द आता है। द स्काई, द अर्थ, द सन। अगर आप प्रॉपर नेम्स ले ओशंस के या सीज के, जैसे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, दीज आर ऑल प्रॉपर नेम्स, तो उनके आगे द आएगा। अगर आप रिवर्स के नेम्स की बात करो, द गंगा, द इंदिरा गांधी कैनाल, द अटकामा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, समथिंग लाइक दैट, तो उनके आगे द आता है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जब आप आइलैंड्स के ग्रुप की बात करो, द मालदीव्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड, समथिंग लाइक दैट, उनके पहले द आता है। यस जानवी, आई विल अपलोड इट। बट सर वी डू से ही बॉट अ पियानो, नो, वो गलत होता है, द शुड बी यूज्ड। अच्छा, ही बॉट द पियानो यस्टरडे, ठीक है। Next is when you talk about chain of mountains and countries, जैसे the Himalayas, the USA is a group of states by the way, तो ये group of states के लिए भी हम the use करते हैं, right? The Mount Everest is incorrect because it is a mountain peak, it's not a mountain chain, right? तो Mount Everest के आगे the नहीं आएगा, Himalayas के आगे the आएगा, okay? Next is famous towers कुछ होते हैं। She knows how to play the guitar, Achal. Yes, Divyanshu. That's the rule. जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आगे द आना चाहिए। होली बुक्स और न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्रोनिम्स, द नेटो, द WHO, समथिंग लाइक दैट, इनके आगे द आता है। माउंट एवरेस्ट के पहले कुछ भी नहीं आएगा, अंशुमन। यस सूरज, दे आर। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि यहां पर आर्टिकल को यूज नहीं करना है, अगर कर लिया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा? अगर आपने सब्सटेंसेस के नेम के आगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे द यूज कर लिया, दैट विल बी इनकरेक्ट। तो नॉन वायलेंस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गोल्ड सब्सटेंस है, मटीरियल है, उनके आगे द यूज नहीं हो सकता, या ए या एन भी यूज नहीं हो सकता। एक्रोनिम का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। आर्यन, yes Yuvraj, the gold is stolen। इतांश, whenever, अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, इफ यू आर रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, तब आप द यूज कर सकते हो। इन जनरल केस में, यहां पर इन जनरल क्लॉज है, इन जनरल आप ए या एन या द यूज नहीं करोगे। हाँ, इसमें आर्टिकल आएगा बिकॉज वी आर नॉट रेफरिंग टू डायमंड आस्था, वी आर रेफरिंग टू डायमंड रिंग। रिंग इज काउंटेबल। You can specify the type here, Atarf. There is no problem. But because piano is a musical instrument, you have to use the before it. Okay. Gold is too expensive, Daksh. Yuvraj, you have a question or something? Again, Achal, you are not referring to gold, you are referring to golden ring. Fear is an abstract noun. Yes, Ronit. Chalo. Next one. When you refer to school or college, church, university, prison, hospital for their primary purpose, तब उनके आगे द नहीं आता है। अब स्कूल का प्राइमरी पर्पस पढ़ाई होता है, कॉलेज का प्राइमरी पर्पस पढ़ाई होता है, चर्च का प्राइमरी पर्पस प्रेयर होता है। अगर आप इन सब कामों के अलावा कोई और काम करने वहां जा रहे हो,
तो then you are supposed to use the before it. So I went to the school yesterday to meet my girlfriend. अब ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, तो द यहाँ पर आएगा. ठीक है. I went to the hospital yesterday for treatment. That is incorrect. Why? Because treatment तो प्राइमरी पर्पस है, तो द यहाँ पर नहीं आएगा. I went to the school today to sleep. That is correct, Shaurya. That is what I did, in fact. Next is, अगर आप in general countable nouns की बात कर रहे हो, तब द नहीं आता है. युवराज, you can speak now. सर दा पर मतलब कोई स्पेसिफाई चीज के लिए यूज करते हैं क्या? Yes, yes. ओके सर. Okay. Mahalakshmi, you can speak now. So good evening. Good evening. Yeah, actually, the can be used in this situation like where, for example, it might be temple or church or something. Then there is a marriage that's going on in temple, say like temple or church. So then it will be like I went to the temple for my friend's wedding or anything like that. So the will Yes, come yes. before. Yes, because that is not the primary purpose of a temple. So you'll have to use the here. Okay, sir. Now, so whenever you talk about countable nouns in a general sense, then you are not supposed to use the before them. But when you're referring to these countable nouns in a particular way, specifying them, then you are supposed to use the. So computers are used everywhere. You're not specifying computers now. But when I say the computers that I purchased yesterday are malfunctioning, so I'm defining which computers I'm talking about. इसलिए the यहाँ पर आएगा. ठीक है? No, Shobit, these primary purposes have been defined already. He is the father of that child. Yes, Arush, it can be used. Now, the relationships like father, mother, brother, in general sense, उनके आगे द नहीं आता है, but specific sense में द आता है. Right? अगर proper noun की बात चल रही है तो द सचिन तेंदुलकर, द अमिताभ बच्चन, द शाहरुख खान, these are all incorrect. ये बहुत बार यूज किया जाता है, but they are incorrect. एक ही सेंस में वो करेक्ट होते हैं. इफ आई से माई यंगर ब्रदर इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई कॉलोनी, दैट मीन्स कि मेरा यंगर ब्रदर इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, तब सचिन तेंदुलकर के आगे द करेक्ट है. ठीक है. विच पॉइंट सूरज? Itansh, computers are used everywhere in the school, not the computers. But जब आप the computer बोल रहे हो, आपको define करना पड़ेगा किस कंप्यूटर की आप बात कर रहे हो. ठीक है. Languages, French, अगर language की बात कर रहे हो, English language की बात कर रहे हो, हिंदी की बात कर रहे हो, तो the नहीं आता है. But in this example, the French defeated the English में, I am not referring to the languages. I am referring to the nationality, French and English nationality, right? Divyanshu, you can speak now. सर बोलो. सर ये जो आपने रूल लिखा है द प्लस प्रॉपर नाउन, हाँ, ये इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना. ये जो मैंने अभी बताया सचिन तेंदुलकर वाला, अगर आप बोल रहे हो ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई कॉलोनी, तो ये द सचिन तेंदुलकर एक कॉमन नाउन की तरह एक्ट करता है. द सचिन तेंदुलकर इज अ क्लास ऑफ पीपल नाउ, इसलिए वहां पर द आ सकता है. आई एम नॉट रेफरिंग टू सचिन तेंदुलकर नाउ. थैंक यू सर. ओके. आगे. तो whenever you refer to meals like breakfast, lunch, dinner, जनरल सेंस में उनके आगे द नहीं आता है. बट आप अगर एक स्पेसिफिक मील को रेफर कर रहे हो तो आप ए या एन यूज कर सकते हो या द भी यूज कर सकते हो. द लंच दैट आई हैड यस्टरडे वाज डिलीशियस, दैट इज करेक्ट. बट आई एम गोइंग टू हैव लंच टुडे, तो द लंच नहीं आएगा यहाँ. क्लियर है? अब दिस वन इज अ बिट टिपिकल problematic for some students. There are some nouns that indicate a position that can be held at one time by one person only. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पर एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, एक टाइम पर एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है. तो इनके आगे द जनरल सेंस में नहीं आता है. बट कब आता है देखो, तो when I refer to the person, when I focus on the person who is holding the position, तब द नहीं आता है.
But when I focus on the position itself, irrespective of the person, तब द आता है. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. माई फोकस इज ऑन द पर्सन हु इज होल्डिंग द पोजिशन, हु इज दैट पर्सन इज डोनाल्ड ट्रंप नाउ. तो आई विल नॉट यूज द हियर. But when I say the president of the USA is quite active on X, so I don't know who the president is, but whoever that person is, he is very active. So I am referring to the position now. तब द आएगा. Clear हुआ everyone? No idea whom. तो ये थे सारे nouns. इनका मैं PDF आपको अपलोड करके दे दूंगा आज. Don't worry. कैन यू एक्सप्लेन आई हैड एन अर्ली डिनर? तो आई हैड एन अर्ली डिनर में मैंने क्या किया, मैंने उस डिनर को डिफाइन कर लिया. बिकॉज आई डिफाइंड कौन सा डिनर, अर्ली डिनर. आई यूज्ड एन एडजेक्टिव बिफोर इट. तब आपको वहां पर एक आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा. डिड नॉट गेट द 8th वन. ओके अंशुमन, विल गो बैक. तो in this example what we are doing is we are talking about one position, president. Up this position can be held by one person at one time, right? In the first example, Donald Trump is the president of the USA. अगर मैं बोल रहा हूँ तो I am referring to Donald Trump. I am focusing on Donald Trump. Focus is on the person who's holding the position. तब द नहीं आता है अगर मैं पर्सन पर फोकस करूं. पर अगर मैं सिर्फ पोजीशन पर फोकस करूं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज क्वाइट एक्टिव ऑन एक्स, means that I don't care who the president is. Whoever this person is, I am focusing on the position now. तब द आता है. Clear now? Rohit Sharma is the captain of Indian national team. That is incorrect, Arush. Rohit Sharma is captain of the Indian national team. Mothers are very innocent, Anchal. The mothers is incorrect. It's a general statement. Yes, Sudarshan. 7th वाले में क्या है, whenever you refer to meals like breakfast, lunch, dinner, अगर आप जनरल सेंस में बात करो तो द या ए या एन कुछ नहीं आता है. अगर आप स्पेसिफिक वे में बात करो तो ए या एन या द आ सकता है. जो एक थंब रूल है वही बताया था मैंने. जनरल में ए या एन आता है, स्पेसिफिक में द आता है, बस. ठीक है, चलो भाई क्वेश्चंस देख लेते हैं, टाइम बहुत कम बचा है. They still have not been able to determine what sort of an organism is that. अब पॉइंट यहां पर यह है कि is आपका verb हो जाएगा, सॉरी is आपका verb हो जाएगा. तो verb पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, यहां तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, बट फुल स्टॉप आया है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. तो दे स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू डिटरमिन व्हाट सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज. क्योंकि अगर मैंने इज दैट लिख दिया तो वो क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा. वर्ब प्लस सब्जेक्ट इज शुड बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो दैट इज होना चाहिए था. Do you know the bow used to play violin is actually made of horses' hairs? Again, the problem is play the violin, musical instrument. So do you know the bow used to play the violin is actually made of horses' hair? Hairs भी correct है, no problem यहाँ पर. Next, या horses' hair कर दो. Next, grandma gave me a bowl of strawberries and I have been munching on them to my heart's contents. No, contents क्या होते हैं, constituents, parts. We are not referring to constituents, we are referring to satisfaction. तो यहां पर आ जाएगा content. To my heart's content, satisfaction. Yes, Ishan. Isn't hair singular? It is. Hair can be used in both ways, by the way. Singular भी use कर सकते हैं, plural भी use कर सकते हैं. Anshuman, do you have a question? Okay, you can speak. In the 8th question that grandma gave me a bowl of strawberries and I've been munching on them to my heart's content. We use them to refer to the strawberries. So why are we personifying the strawberries here? Shouldn't it be those or these instead of them? We can use them here. There is no problem.
because strawberries plural है. Them can be used for persons as well as non-living things as well. Okay, Okay. thank you. Sixth में can it be changed to it in sixth? They still have not been able to determine what sort of an organism it is. That is, दोनों correct है. There is no problem. It तब आएगा जब आपके सामने वो organism है. That तब आएगा जब आप पीठ पीछे उसकी बात कर रहे हो. Can we use articles before common nouns? Depends on the question statement, Suraj. The hair of horses. Yes, Shaurya. My hair are turning grey. Got it? In this situation, I'm using hair as plural. That is correct, Bhaskar. That is correct, Sneha. Sir, in sixth should not have not the changed to are not. Garima, I did not get it. Garima, you can try to raise your hand. Do you know the bow we used to play? No, that नहीं आएगा यहाँ पे. We are referring to a specific bow ना, तो the आएगा. No, are not is incorrect here. We are not talking about continuous action, Garima. Astha, you can speak now. Sir, good evening. Sir, in question Yes. 7, do you know that the bow? Can't it be correct? No, in that situation आप क्या करोगे? That को as a conjunction use कर लोगे to start a new clause. The meaning will remain the same, but you are unnecessarily increasing the length of the sentence. जब उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा. And in question 6, can't it be what sort of an organism is this? Is this same problem? Is this अगर आपने बोला तो is पहले आ गया, subject बाद में आ गया. तो this should end with a question mark then. But we are not asking a question. We are stating or we are making a statement of fact. उसके लिए last में full stop आना चाहिए. Full stop के लिए we need the order subject plus verb. Subject plus verb के लिए that is. ठीक है. Next, कहाँ था मैं? I told the doctor that I tried taking the pills he had prescribed for the stomach pains, but they did not have any effect. I told the doctor that I tried taking the pills he had prescribed for the stomach pains. Stomach pain, sorry, pains. Pains, वही तो देखा नहीं मैं. Stomach pain. For the stomach pain. ठीक है? Pains cannot be counted ना. Stomach pain. Madhav, you can speak now. So shouldn't be like I told doctor that I tried to taking the pills. Sorry. The the should be omitted. I told Which one? doctor. First one. I told the doctor. I'm referring to a specific doctor. I'm not referring to a general doctor. I went to a particular doctor and that doctor told me, or I told him that I tried taking the pills that he had prescribed. So I'm going to this doctor now. It's a specific Okay. doctor. Okay. Okay. Last question. The show is about two couples and the adventures of their rebellious offsprings. यहाँ पर क्या आएगा? Offspring आएगा ना, I think. Offspring is singular. या तो ऐसा होना चाहिए द शो इज अबाउट अ कपल
and the adventures of their rebellious offspring. It should be offspring. Offspring is singular. ये plural नहीं होता है, I think. Okay. 2 couples तो correct हो जाएगा, I think. Why are we using the before show? The show. We are referring to a specific show. So the show आएगा ना. The 2 couples, we're not referring to the couples. We don't know which couples I'm talking about. टेंथ वाले में एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई और एरर हो सकता है क्या. मैं एक बार चेक कर लूंगा. बट अंटिल देन आप ट्राई करो कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो. मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे एक और सेशन अरेंज करता हूँ इन फ्यूचर, सो दैट हम इसके सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं. तो इसके ऊपर एक और सेशन करते हैं, फिर से पूरा डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, अभी टाइम एक्चुअली हो चुका है, तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन फर्दर. डोंट वरी, अगर आपका कोई भी डाउट मैंने नहीं लिया है, आई विल टेक दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन. टेंशन मत लो, अभी मैं जिंदा हूं, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है, चलिए. So I'll upload this file along with the concept वाली file, and you can go through it, revise it, and then we'll discuss it again. Thank you, bye, good night, take care everyone. Shubh Ratri.